السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائی ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 50۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے اشارہ کرنے پر حوریہ بیگم اور شاہجہاں بیگم نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ نورالعین دونوں کے گال پر باری باری بوسہ دیتے ہوئے مسکرا دی۔ آپ دونوں نے اب میرا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ نورالعین لاڑ سے بولی، جبکہ اس نے اپنی آواز مدھم رکھی تھی۔ وہ دونوں نورالعین کی بات کو سمجھتے ہوئے سر ہلا گئے تھے، جبکہ سامنے صوفے پر بیٹھے سب ہونک سے کبھی نورالعین کو تو کبھی واحد شاہ کو اور اذان شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی ہمیں بتائے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حیدر نے واحد شاہ اور اذان شاہ سے سوال کیا۔ وہ تو تم لوگ بتاؤ گے، یہ گھر کو کیوں اتنا سجایا ہوا ہے، یہ ٹیبل پر اتنی کھانے کی چیزیں رکھی ہے، یہ سب کس خوشی میں؟ اذان شاہ نے حیدر کے سوال کے بدلے سوال کیا۔ چھوٹے بابا، یہ تو فارس بھائی اور وہاب بھائی کے رشتہ پکا کرنے کی خوشی میں ہے۔ آج ہم حیدر بھائی سے مرحا کا رشتہ لینے آئے تھے، وہاب بھائی کے لیے۔ احد خانزادہ نے ساری تفصیل بتائی۔ فارس خانزادہ، وہاب خانزادہ خاموش تھے۔ ان دونوں کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف اسلان شاہ کے دل میں بھی یہی خیال تھا، جبکہ سب لڑکیاں خاموشی سے لاؤنج میں ہوتی ساری کارروائی کو دیکھ رہی تھیں۔ ہو گیا رشتہ پکا؟ وہاں شاہ نے احد خانزادہ کی بات سن کر حیدر سے سوال کیا۔ ابھی کہاں بڑے پاپا؟ حیدر بھائی نے شرط رکھی تھی، جب تک گھر کے بڑے خود رشتہ طے نہیں کریں گے تب تک وہ مرحا کا رشتہ نہیں دیں گے، لیکن اب تو آپ لوگ آ گئے ہیں نا، تو اب ہم رشتے کی جگہ ڈائریکٹ نکاح کریں گے۔ نورالعین حیدر کی بات کاٹ کر بولی۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات سے مکر جاتا، نورالعین نے ساری تفصیل وحاد شاہ اور اذان شاہ کو بتا دی۔ وہیں اپنی بہن کی بات پر وہاب خانزادہ اور فائز خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ انہیں اب یہ پکا یقین ہو چکا تھا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ ان کی بہن شکل سے جتنی معصوم تھی اتنی ہی وہ پہنچی ہوئی چیز تھی۔ کیا فیصلہ ہے اب تمہارا حیدر؟ وحاد شاہ ان سب کا دھیان اپنی طرف سے ہٹا چکے تھے اور سنجیدہ لہجے میں حیدر سے اس کے فیصلے کے متعلق پوچھنے لگے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بڑے بابا، حیدر نے مسکرا کر جواب دیا۔ یاہو! نورالعین حیدر کے جواب پر اچھلی۔ سبھی اس کے بچوں جیسے انداز پر مسکرا دیے۔ شاہ اپنا والٹ دے، نورالعین نے اسلان شاہ کے پاس کھڑے ہو کر کہا۔ اسلان شاہ نے نورالعین کی بات پر بغیر کچھ بولے اپنی پاکٹ سے اپنا والٹ نکال کر نورالعین کی ہتھیلی پر رکھا۔ نورالعین نے مسکرا کر والٹ کو تھاما اور اس میں سے کئی ہزار ترکی کی کرنسی نکال کر وہاب خانزادہ، فارس خانزادہ پر وارے اور پھر پری ششا اور مرحا کے سر پر سنوارتے ہوئے ملازمہ کو آواز لگاتے ہوئے وہ پیسے اسے تھما گئی۔ ملازمہ جو ترکش تھی لیکن اردو زبان بھی جانتی تھی، نورالعین کے پیسے تھامنے پر ترکی زبان میں مسکرا کر شکریہ کہتی ہوئی واپس کچن میں چلی گئی۔ تھینک یو حیدر لالا۔ نورالعین حیدر کے مان جانے پر اس کے پاس بیٹھی اور مسکرا کر بولی، یہ جو آپ نے اتنا ڈرامہ کیا ہے نا رشتے کے لیے، نور، آپ ایک بار مجھ سے کہتی تو میں خوشی خوشی رشتہ دے دیتا۔ حیدر نورالعین کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، کب آپ تو اتنے نخرے کر رہے تھے، کیسے کہہ رہے تھے ابھی اپنے بڑوں کو لاؤ گے تو ہی رشتہ دوں گا، یہی کہا تھا نا؟ نورالعین حیدر کی بات پر اس کی پہلے کی جانے والی بات دہراتی سب کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ حیدر نورالعین کی بات پر مسکرایا۔ میری محبوبہ، اپنی بیوی کو اپنے ان 3 سالوں سے دور رکھ، ورنہ تیری بیوی کو یہ 3 سالے بگاڑ دیں گے۔ حیدر نے ان تینوں بھائیوں کو آنکھ ونک کرتے ہوئے اسلان شاہ سے کہا۔ پہلی بار حیدر میاں، تم نے صحیح بات کی، اسلان شاہ میاں لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ وہیں ان تینوں نے حیدر اور اسلان شاہ کو گھورا، جو ان تینوں کے سامنے ہی ان کی بہن کو دور رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ رشتہ پکا ہو گیا ہے تو اب نکاح ہم آج نہیں پاکستان جا کر کروائیں گے۔ وحاد شاہ نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، کیوں، یہاں پر کیوں نہیں بڑے بابا؟ نورالعین نے پوچھا۔ سادگی سے نکاح کروانا چاہتی ہے آپ اپنے بھائی اور لالا کا؟ وحاد شاہ نے سوال کیا۔ نورالعین نے نام سر کو ہلایا۔ وہ تو ایسے تھوڑی نکاح کروانا چاہتی تھی، وہ تو دھوم دھام سے نکاح کروانا چاہتی تھی اپنے دونوں بھائیوں کا۔ نہیں، میں تو دھوم دھام سے اپنے بھائیوں کی شادی کروں گی، نورالعین چہک کر بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، سب اپنی پیکنگ کر لو، ہم لوگ ٹھیک 2 دن بعد پاکستان جائیں گے اور پھر ہم وہاب خانزادہ، فارس خانزادہ اور حیدر کی شادی کریں گے۔ وحاد شاہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ وہیں حیدر وحاد شاہ کے فیصلے پر مسکرا دیا۔ آخر وہ دن آنے والے تھے جس کا اسے کئی مہینوں سے انتظار تھا۔ حیدر نے اپنے ساتھ بیٹھی وانیہ کو دیکھا۔
जो शर्मीली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए उसे ही देख रही थी। हैदर ने वानिया को एक आंख विंक की। वानिया सटपटाती हुई अपनी नज़र झुका गई। कुछ दिन जाने वहाब, फिर आप मेरी दस्तरस में आ जाएंगी। खुद को तैयार करके आना। अल्लाह जिस दिन आप मेरी महरम बनकर मेरे रूबरू आएंगी, उस दिन आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। वहाब खानज़ादा ने मरहा की तरफ झुककर सरगोशी की। मरहा वहाब खानज़ादा की बात पर अपने लब काटती उसे देखने लगी। ना देखिए ऐसे मुझे मरहा, वरना आपकी इन सुनहरी आंखों को चूमने को मेरा दिल बेकरार हो जाएगा और मैं बगैर किसी रिश्ते के गुस्ताखी नहीं कर सकता। वहाब खानज़ादा ने उसकी आंखों की हरकत को देखकर ज़ोमानी अंदाज में कहा, जबकि उसकी बात पर मरहा दिलो जान से लरज़ उठी थी। वो शिकस्ता कदमों से अपनी गाड़ी में बैठा अपने हाथ में थामे फाइल को वो साकित नज़र से देख रहा था। उस फाइल को देखकर उसकी आंखों से आंसू जारी हुए। उसका पूरा वजूद हिचकोले लेते हुए लरजने लगा। उसकी सिसकियां गाड़ी के अंदर गूंजने लगी। ये कैसा इंकशाफ हुआ था उस पर? वो अभी तक हैरान था। जिस चीज़ का उसे तसव्वुर करना छोड़ दिया था, आज उस तसव्वुर को हकीकत में देखकर वो बेयकीन हुआ था। अपने लरजते सिसकते वजूद को संभालते हुए वो अपने आंसुओं को साफ कर दे। अपने हाथ में थामे फाइल को अपने साथ वाली सीट पर रखते हुए एक गहरा सांस भर गया और गाड़ी का स्टीयरिंग थामे वो अपनी गाड़ी का रुख अपनी मंजिल की जानिब कर गया। तकरीबन 30 मिनट की ड्राइविंग करते वो अपनी मतलूबा जगह पर अपनी गाड़ी को रोकते हुए फाइल को सेट करते, सीट से उठाते हुए खुद गाड़ी से बाहर आया। अपनी गाड़ी को लॉक लगाते वो अंदर घर की जानिब अपने कदम बढ़ा गया। घर की डोरबेल को बजाते वो बेसब्री से दरवाजे के खुलने का इंतज़ार करने लगा। उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। कुछ ही लम्हों में घर का दरवाज़ा खुल गया, जबकि अपने सामने रऊफ़ लखानी को देखकर ज़किया बेगम मुस्कुरा दी। आ जाए बच्चे अंदर, ज़किया बेगम ने रऊफ़ लखानी को पुकारते हुए अंदर आने का कहा, क्योंकि वो सिर्फ साकित नज़र से घर को और ज़किया बेगम को देख रहा था। ज़किया बेगम की आवाज़ सुनते हुए वो अपने हाथ की गिरफ्त फाइल पर मजबूत करते हुए अंदर घर में आया। ज़किया बेगम उसे सोफे पर बैठने का कहती खुद किचन में चली गई। कुछ मिनट में वो अपने हाथ में ट्रे को थामती हुई किचन से बाहर आई और ट्रे को टेबल पर रख गई। रऊफ़ लखानी ने मुस्कुराकर ट्रे से पानी का गिलास उठाते हुए अपने सूखे गले को तर किया। सॉरी बच्चा, उस दिन मैं आपके पास ज़्यादा नहीं बैठ सकी और मुझे तो आपको शुक्रिया कहने का मौका नहीं मिला। आपकी वजह से मेरा पोता सही सलामत है। ज़किया बेगम रऊफ़ लखानी को देखकर बोली, जबकि रऊफ़ लखानी महज सर को हिला गया। ऐसी बात नहीं है दादी जान, अल्लाह ने मुझे वसीला बनाकर भेजा था इब्राहिम के लिए, और शायद मुझे अपनी जान से बिछड़े शख्स से भी मिलाना था। ये अल्लाह की तरफ से शायद मेरे लिए कोई मसलहत थी। रऊफ़ लखानी ने रसानी से जवाब दिया, बेशक बच्चे, ऐसा ही है। ज़किया बेगम उसकी बात पर बोली, आप यकीनन इब्राहिम से मिलने आए होंगे? ज़किया बेगम ने सवाल किया, क्योंकि वो अपनी नज़र यहाँ वहाँ दौड़ा रहा था। नहीं, मैं आपसे मिलने आया था, मुझे आपसे कुछ जानना था। रऊफ़ लखानी अपनी नज़र ज़किया बेगम की तरफ मरकूज़ करते हुए बोला, जबकि ज़किया बेगम ने नासमझी से उसे देखा। क्या जानना है आपने मुझसे? ज़किया बेगम ने सवाल किया। आप किसी सिकंदर लाखानी को जानती हैं? रऊफ़ लखानी ने संजीदा लहजे में पूछा। ज़किया बेगम ने रऊफ़ लखानी के मुंह से सिकंदर लाखानी नामी शख्स का नाम सुनकर उसे साकित नज़रों से देखा। आंखों में एक अनजाना सा खौफ सिमट आया था। मुकाबिल कैसे सिकंदर लाखानी को जानता था? ज़किया बेगम ने अपना हलक तर करते हुए रऊफ़ लखानी को देखा। आप कैसे उस शख्स को जानते हैं? ज़किया बेगम ने धड़कते दिल से सवाल किया। रऊफ़ लखानी ने ज़किया बेगम की बात पर गहरा सांस भरा। बदकिस्मती से मैं उस शख्स का बेटा हूँ। रऊफ़ लखानी ने ज़किया बेगम की समातों में बम फोड़ा। ज़किया बेगम सोफे से खड़ी होती बेयकीन नज़रों से रऊफ़ लखानी की बात को प्रोसेस करने की तगदो करने लगी। नहीं, ज़किया बेगम लरजते हुए नाम सर को हिला गई। आंखों के सामने माजी घूमने लगा, जिस माजी को वो कितने अरसे से सबसे छुपाती आई थी। आज उस माजी का अक्स उसके सामने खड़ा था, जिसके साथ उनका नहीं, उनके पोते का माजी जुड़ा था। मुझसे क्या जानना है और मैं कैसे मान लूँ तुम सिकंदर लखानी के बेटे हो? ज़किया बेगम अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली। उन्हें अब होश आया था कि वो गायब दिमागी से रऊफ़ लखानी को वो जवाब और वो हकीकत बता गई थी जो आज तक सबसे छुपी थी, और वो कैसे एक शख्स के नाम से सब मुकाबिल को बता सकती थी। दुनिया में कितने ही सिकंदर नाम वाले लोग होते हैं, वो कोई भी हो सकता है। उनके मरहूम बेटे का नाम भी तो सिकंदर था। वो कैसे ये बात भूल गई थी? उन्हें अपनी जल्दीबाजी पर अफसोस हुआ, लेकिन मुकाबिल का अचानक सवाल और अचानक ही सिकंदर लखानी का नाम लेना उसके जहन को माऊफ कर गया था।
میں جانتا تھا دادی آپ یہی سوال کریں گی، اس لیے میں سارے ثبوت لے کر آیا ہوں۔ رؤف اللہ خانی نے ذکیہ بیگم کی بات پر گہرا سانس بھرا اور ٹیبل سے فائل کو اٹھاتے اس پر لگی سکندر اللہ خانی کی تصویر کو اتارتے ہوئے ذکیہ بیگم کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، وہ اپنی پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ اس کا ارادہ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا تھا، وہ تو صرف حقیقت جاننے آیا تھا۔ ذکیہ بیگم نے پک چہرے سے ٹیبل پر رکھی تصویر کو دیکھا۔ ٹیبل پر رکھی ہوئی اسی شخص کی تصویر اسی شخص کی تھی، ہاں اسی سکندر لکھانی کی۔ ذکیہ بیگم کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذکیہ بیگم لرزتے ہوئے بڑبڑائی، آنکھوں سے آنسو روانگی سے بہنے لگے، آنکھوں میں انجانا سا خوف۔ رؤف اللہ خانی ذکیہ بیگم کے لرزتے وجود کو دیکھ کر صوفے سے اٹھتے ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھا اور انہیں اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ اس عورت کو کیسے رلا سکتا تھا جس نے اس کے بھائی کی جان بستی تھی؟ دادی جان، ایسے مت روئیے، آپ کو ایسے روتا دیکھ کر ابراہیم کو دکھ ہوگا۔ رؤف اللہ خانی انہیں مسلسل روتے دیکھ کر بولا۔ ایک ہی ملاقات میں وہ جان گیا تھا کہ ابراہیم کے نام پکارنے پر چپ ہو جائے گی۔ ہوا بھی ایسا، ذکیہ بیگم ابراہیم کے نام پر بالکل چپ ہو گئی، لیکن ان کا وجود ابھی تک ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ رؤف اللہ خانی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ذکیہ بیگم کچھ لمحے بعد رؤف اللہ خانی کے حصار سے الگ ہوئی اور اپنے چہرے کو صاف کرتی ہوئی رؤف اللہ خانی کو دیکھنے لگی۔ وہ کون سی حقیقت جانتے ہو؟ ذکیہ بیگم سے سوال کیا۔ وہی حقیقت جو آپ مجھے بتانے سے ڈر رہی ہے، لیکن میں وہ حقیقت جان گیا ہوں۔ میں جان گیا ہوں ابراہیم میرا بھائی ہے، میرا جڑواں بھائی، میرا وہ بھائی جس کا وجود میری ماں کے ہوش آنے سے پہلے ہی مٹا دیا گیا تھا، اور اسی وجود کے زندہ ہونے کی تصدیق نے میری ماں کی جان لے لی۔ رؤف اللہ خانی نم اور اذیت بھرے لہجے میں بولا، کیا مطلب؟ ذکیہ بیگم نے رؤف اللہ خانی کے لفظوں میں درد، اذیت و کرب محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی میرے بابا نے میری ماما کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ انہیں اپنے شوہر کی حقیقت پتہ چل گئی تھی کہ جس بچے کے مرنے کا غم وہ اتنے عرصے سے مناتی رہی تھی، در حقیقت تو وہ بچہ زندہ تھا۔ رؤف اللہ خانی صوفے کی سطح پر اپنا سر گراتے ہوئے بولے، جبکہ رؤف اللہ خانی کی بات پر ذکیہ بیگم کے ارد گرد دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ پہلے جڑواں لفظ پر اٹکی ہوئی تھی، اور اب یہ حقیقت کہ اگر یہ حقیقت تھی تو پھر وہ جو حقیقت انہیں اتنے سال پہلے سکندر لکھانی نے بتائی تھی تو وہ کیا تھا؟ ایک دھوکہ؟ ذکیہ بیگم نے رؤف اللہ خانی کے چہرے کو دیکھ کر سوچا اور اپنا حلق تر کرتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ میں نہیں جانتی بچے کیا سچ ہے کیا جھوٹ، لیکن اتنا کہہ سکتی ہوں کہ ہاں ابراہیم تمہارا بھائی ہے، کیونکہ وہ ٹیبل پر کھولی ڈی این اے کی رپورٹ دیکھ چکی تھی اور وہ جان گئی تھی مقابل اتنا بڑا دعویٰ بغیر ثبوتوں کے نہیں کر رہا۔ رؤف اللہ خانی نے ذکیہ بیگم کی بات پر صوفے کی سطح سے اپنا سر اٹھایا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ سچ کہہ رہی ہے؟ رؤف اللہ خانی سچ جانتے ہوئے بھی ذکیہ بیگم کی بات پر بولا۔ ہاں، وہ میرے سکندر کا بیٹا نہیں ہے۔ ذکیہ بیگم نے یہ الفاظ کتنے درد بھرے لہجے میں کہے تھے، کوئی ان سے پوچھتا دل تڑپ اٹھا تھا یہ کہتے ہوئے کہ وہ میرے سکندر کا بیٹا نہیں ہے۔ رؤف اللہ خانی ان کی حالت سمجھ رہا تھا، اس کی آنکھیں اشک بار ہوئی تھیں۔ ہمیں تو وہ چھوٹا سا سفید چادر میں لپٹا نومولود بچہ یہ کہہ کر تھمایا گیا تھا کہ اس بچے کی ماں اس بچے کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی۔ ذکیہ بیگم ماضی کا قصہ نم آنکھوں سے بتاتی ہوئی بولی۔ وہیں رؤف اللہ خانی نے ساکت نظروں سے ذکیہ بیگم کو دیکھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ رؤف اللہ خانی نے شک بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک ذکیہ بیگم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ہاں، ہمیں یہی کہا گیا تھا۔ ذکیہ بیگم نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ سب آپ کو کس نے کہا؟ رؤف اللہ خانی دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ جانتا تھا کون شخص تھا، لیکن پھر بھی خود کو اذیت دینے کے لیے نام پوچھ بیٹھا تھا۔ ذکیہ بیگم کے لب واہ ہوئے اور ان کے لبوں سے سکندر لکھانی کا نام سن کر رؤف اللہ خانی اذیت بھری ہنسی ہنسا۔ کاش آپ زندہ ہوتے سکندر لکھانی، میں آپ سے پوچھتا کہ کب میری ماں نے ایک بچے کو اپنانے اور دوسرے بچے کو کسی اور کو تھمانے کا کہا۔ آئی ہیٹ یو بابا، آئی ہیٹ یو۔ سکندر لکھانی اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے چلایا، جبکہ ذکیہ بیگم نم آنکھوں سے رؤف اللہ خانی کو دیکھتی رہی۔ دادی، مجھے سب جاننا ہے۔ اس دن کے بارے میں رؤف اللہ خانی اپنی آنکھوں کو بے دردی سے صاف کرتے ذکیہ بیگم کی جھریوں زدہ ہاتھوں کو تھام کر بولا۔ ذکیہ بیگم نے اپنا حلق تر کیا۔ انہیں اس دن کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک اور حقیقت بھی بتانی پڑنی تھی جو ایک ماں کبھی بھی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، لیکن انہیں بتانی تھی کیونکہ اس حقیقت کو صرف 4 لوگ جانتے تھے: سکندر شاہ، سکندر لکھانی، زیبا شاہ، سکندر شاہ کی بیوی، اور ایک وہ خود تھی۔ ذکیہ بیگم نے رؤف اللہ خانی کے چہرے پر آنسوؤں کو دیکھ کر انہیں صاف کیا اور اسے دیکھ کر ماضی سنانے لگی، اپنے لب وا کیے، جبکہ رؤف اللہ خانی کسی چھوٹے بچے کی طرح ذکیہ بیگم کے ساتھ لگا اور خود کو ماضی سننے کے لیے تیار کرنے لگا۔ ماضی
सफ़ेद दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आती हुई आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, जबकि कमरे में 4 लोगों के होते हुए इतनी खामोशी किसी अनहोनी का पता दे रही थी। जबकि वहाँ पर बैठे 3 नफूस ऐसे थे जिनकी नज़र टेबल के उस पार चेयर पर सफ़ेद कोट डाले डॉक्टर पर मरकूज थी, जबकि डॉक्टर कभी अपने सामने बैठे कपल को तो कभी अपने हाथ में थामी रिपोर्ट को देख रही थी। उनके चेहरे के तासुरात निहायत संजीदा थे। सब ठीक है ना डॉक्टर? ज़ेबा शाह ने कमरे की खामोशी को तोड़ा और डॉक्टर से सवाल किया, जो पिछले 5 मिनट में कितनी ही दफ़ा ही रिपोर्ट को देख चुकी थी, लेकिन उनके लब सिले हुए थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन किसी वजह से नहीं कह पा रही हो। डॉक्टर ने ज़ेबा शाह की बात पर गहरा सांस भरा और रिपोर्ट को टेबल पर रखा और उनकी जानिब देखकर बोली, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है मिस्टर सिकंदर शाह? डॉक्टर ने सिकंदर शाह से सवाल किया, जबकि सिकंदर शाह ने डॉक्टर की बात पर उन्हें देखा। 3 साल, सिकंदर शाह ने जवाब दिया। ज़किया बेगम और ज़ेबा शाह ने डॉक्टर की बात पर उलझन भरे चेहरे से देखा। डॉक्टर ने सिकंदर शाह की बात पर सर को हिलाया और अपनी चेयर पर टेक लगाकर बैठ गई। आप कुछ बता क्यों नहीं रही डॉक्टर? ज़ेबा शाह ने झंझलाकर कहा, तहम्मुल मिसेस सिकंदर, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। डॉक्टर ज़ेबा शाह के झंझलाहट भरे लहजे पर बोली। ज़किया बेगम खामोशी से सुन रही थी। फ़र्ज़ अगर मैं आपसे ये कहूँ मिसेस सिकंदर आप माँ नहीं बन सकती तो? डॉक्टर ने ज़ेबा शाह की तरफ देखकर कहा। डॉक्टर की बात पर ज़ेबा शाह का चेहरा सफ़ेद पड़ा। ज़ेबा शाह ने नफ़ी में सर को हिलाया। ऐसा नहीं हो सकता। सिकंदर ज़ेबा शाह ने सिकंदर शाह के कंधे पर हाथ रखते हुए हिचकियों से कहा, जबकि सिकंदर शाह ने डॉक्टर की बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। उन्होंने खामोशी से ज़ेबा शाह को अपने सीने से लगाया। ज़ेबा। सिकंदर शाह ने ज़ेबा शाह की कमर सहलाते हुए उन्हें खामोश करवाया, जबकि ज़किया बेगम भी ज़ेबा शाह को देख रही थी। ज़ेबा, लीव इट लव इट मी हम दूसरी डॉक्टर से लिव इट मी हम दूसरी डॉक्टर से चेक करवाएंगे। मुझे यकीन है आप माँ बन सकती है। प्लीज़ खुद को तकलीफ़ मत दो। सिकंदर शाह ज़ेबा शाह को मुसलसल सिसकियाँ लेते देखकर उसका चेहरा थाम कर बोला, आप सुन नहीं रहे डॉक्टर ने क्या कहा? मैं माँ नहीं बन सकती सिकंदर। ज़ेबा शाह ने गुस्से व गम भरे लहजे में कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़ेबा शाह, आपसे ज़्यादा मुझे कोई अजीज़ नहीं। अगर मेरे नसीब में औलाद लिखी हुई तो वो मुझे मिल जाएगी, अगर नहीं तो मैं ऐसे ही खुश हूँ। मुझे आपके सिवा कोई नहीं चाहिए। सिकंदर शाह ज़ेबा शाह के चेहरे को थाम कर संजीदा लहजे में बोले। ज़ेबा शाह ने नम आँखों से सिकंदर शाह को देखा और एक नज़र ज़किया बेगम को, जो उसे ही देख रही थी। ज़किया बेगम ने अपने बाजू वाह किए। ज़ेबा शाह सिकंदर शाह से अलग होती ज़किया बेगम के गले लगी। अम्मी, ज़ेबा शाह ने दर्द भरी आवाज़ में पुकारा, मेरा बच्चा, रो मत, तुम्हारा रोना मेरे सिकंदर को तकलीफ़ पहुंचा रहा है। मेरा बच्चा, रोकर मेरे बच्चे को तकलीफ़ मत दो। रही औलाद की बात तो कोई नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगी, अगर ना मिलेगी तो हम ऐसे ही रह लेंगे। ज़किया बेगम ने ज़ेबा शाह के माथे पर बोसा देते हुए कहा। डॉक्टर जबकि जबकि डॉक्टर पहली बार हैरानगी से ऐसा कुछ देख रही थी। बेटा तो बेटा, सास भी ऐसी डॉक्टर ने पहली बार देखी थी, वरना उसने अपने करियर में कितने ही केसेस देखे थे जिसमें अगर कोई औरत माँ नहीं बन सकती तो उनके शौहर उनकी सास अपनी बहू पर तंज करते हुए नहीं थकते थे कि वो बांझ है, और कई सास तो डॉक्टर के सामने ही अपने बेटे से दूसरी शादी का कह रही होती है और बेटा माँ की बात पर सर हिला देता है। क्या उसकी नज़र में अपनी बीवी की हैसियत सिर्फ इतनी सी होती है कि उसकी बीवी बांझ है तो उस पर सौतन लाकर बिठा दी जाए? ऐसा क्यों? क्या उसके जज्बात नहीं होते जो उस पर इस तरह का जुल्म किया जाता है? माना औलाद सबको चाहिए होती है और बीवी भी तो सबको चाहिए होती है, और वही औलाद बीवी पर हावी हो जाती है कि मर्द दूसरी शादी कर लेता है बगैर अपनी पहली बीवी के एहसासात की फ़िक्र किए। अगर मर्द में हो और वो बाप ना बन सके तो बीवी क्या करे? वो मर्द की तरह दूसरी शादी थोड़ी कर सकती है, लेकिन वो तो वफ़ादार बीवी की तरह शौहर का साथ निभाती है। लेकिन मर्द क्यों नहीं वफ़ा निभा सकता? क्यों एक ही ज़िंदगी में ममता अपनी बीवी पर मर्द अपनी बीवी पर सौतन लाकर उस पर सारी उम्र का रोग लगा देता है? डॉक्टर तासुब से सोच रही थी। ज़ेबा शाह कुछ खामोशी के बाद सिकंदर शाह को देखकर बोली, शाह अब दूसरी शादी। ज़ेबा शाह अपनी बात कहती हुई रुक गई। शट अप ज़ेबा। सिकंदर ज़ेबा शाह को की बात पर दहाड़ा था, खबरदार आपने दोबारा ऐसी बात की। सिकंदर शाह ज़ेबा शाह को सहम कर ज़किया बेगम के साथ लगे देखकर दांत पीसते हुए बोला, अगर मैं आपको मशवरा दूँ मिसेस सिकंदर शाह, आप मिस्टर सिकंदर से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ले तो क्या आप कर लेंगी? डॉक्टर ने अपना गला खंगाल कर ज़ेबा शाह की तरफ देख कर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ेबा शाह मरते दम तक सिकंदर शाह की है।
ज़ेबा शाह डॉक्टर की बात पर अपनी आंखों में आग जैसी चिंगारियां लेते हुए बोली। वो बोली कम थी लेकिन दहाड़ी ज़्यादा थी। डॉक्टर ज़ेबा की बात पर हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उन्हें उम्मीद हो कि उनका जवाब यही होगा। मिस्टर सिकंदर, आप ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। डॉक्टर टेबल से एक रिपोर्ट उठाती सिकंदर शाह की जानी बढ़ाती ही बोली। सिकंदर शाह ने एक नज़र डॉक्टर और एक नज़र उनके हाथ में मौजूद रिपोर्ट को देखा। उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। सिकंदर शाह ने रिपोर्ट को थामा और उसे जल्दी से खोलकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे सिकंदर शाह का चेहरा सफ़ेद हुआ। वो फक नज़र से रिपोर्ट को देख रहा था। सिकंदर शाह का पूरा वजूद लरज़ने की ज़लज़ले की ज़द में आया। रिपोर्ट देखकर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसमें जो लिखा हुआ है वो सच है या झूठ। सिकंदर ने कपकपाते लहजे में डॉक्टर से सवाल किया, ये सब सच है? सिकंदर शाह ने कहा। डॉक्टर ने महज सर हिलाकर उनके सवाल का जवाब दिया। सिकंदर शाह ने डॉक्टर के जवाब पर अपना सर पीछे चेयर की सतह पर रखकर एक गहरा हौका हंकारा भरा। आंखों के किनारे से आंसू निकलते उसके चेहरे को भिगोने लगे। ज़ेबा शाह और ज़किया बेगम ने नासमझी से एक दूसरे को देखा। सिकंदर, आप ठीक हैं? ज़ेबा शाह कुछ लम्हों की खामोशी के बाद सिकंदर शाह के कंधे पर हाथ रखती हुई बोली। सिकंदर शाह ने ज़ेबा शाह की बात पर अपना सर चेयर की सतह से हटाया और ज़ेबा शाह की तरफ देखा। ज़ेबा, आप माँ बन सकती है। सिकंदर शाह ने हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब दिया। वहीं ज़ेबा शाह ने बेयकीनी से सिकंदर को देखा। लेकिन डॉक्टर, ज़ेबा शाह ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। मिसेस सिकंदर, शायद आपने मेरे लफ्ज़ों को गौर से नहीं सुना था। मैंने आपसे कहा था कि आप फ़र्ज़ करें कि आप माँ नहीं बन सकती। मैंने तो फ़र्ज़ करने का कहा था, लेकिन आप जज्बाती हो गई थी और मैं समझती हूँ आपका जज्बाती होना एक नेचुरल बात थी। अगर हम किसी भी औरत से कहते हैं कि वो माँ नहीं बन सकती, उनका रिएक्शन भी ऐसा ही होना था। लेकिन जो उनकी फैमिली का रिएक्शन था वो आपके शौहर और सास का बाकी सब फैमिली से मुख्तलिफ था, जो मेरे लिए भी शौक से कम नहीं था। ज़ेबा शाह की बात का जवाब डॉक्टर ने दिया था। ज़ेबा शाह ने डॉक्टर की बात पर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने उसे इस इम्तिहान में नहीं डाला था। लेकिन जानती नहीं थी कभी कभार कुछ इम्तिहान अल्लाह उनकी पसंदीदा चीज़ों के ज़रिए से लेता है। सिकंदर, आप सुन रहे हैं? मैं माँ बन सकती हूँ अम्मी, मैं माँ बन सकती हूँ। ज़ेबा शाह खुशी से कभी सिकंदर शाह को तो कभी ज़किया बेगम को बता रही थी। हाँ मेरा बच्चा, मैं सुन रही हूँ। ज़किया बेगम ज़ेबा शाह को अपने सीने से लगाती उसका माथा चूमती मोहब्बत से बोली थी। सिकंदर शाह की नज़रें तो ज़ेबा शाह के चेहरे पर फैलती खुशी को देख रही थी। चले हम घर, सिकंदर, ज़ेबा शाह ने सिकंदर को कंधे से हिलाते हुए कहा, जो किसी सोच में गुम था। सिकंदर शाह ने एक नज़र ज़ेबा को और एक नज़र डॉक्टर को देखा। सिकंदर ने खाली नज़र से ज़ेबा शाह पर वापस अपनी नज़रें मरकूज़ कर ली थी। डॉक्टर, सिकंदर शाह ने डॉक्टर को पुकारा, जबकि ज़ेबा शाह, जो कब से सिकंदर को खुद की तरफ तो कभी डॉक्टर की तरफ देखता पाकर नासमझी से सब कुछ देख रही थी, दिल बेचैन हुआ। क्या हुआ सिकंदर? ज़ेबा शाह मुसलसल खामोशी पर हकलाती हुई बोली, जबकि ज़किया बेगम का दिल भी कमरे की खामोशी पर घबरा रहा था। मिसेस सिकंदर, आप माँ बन सकती है, लेकिन मिस्टर सिकंदर बाप बनने की अहलियत नहीं रखते। आखिरकार डॉक्टर ने रिपोर्ट पर लिखी हुई तहरीर सबके गोश गुजार कर दी। सिकंदर शाह ने डॉक्टर की बात पर कर्ब से अपनी आंखें मींची। ज़ेबा शाह ने शौक और बेयकीनी से डॉक्टर को देखा और वहीं सिकंदर शाह के चेहरे पर कर्ब फैलता देखकर ज़ेबा शाह सिकंदर शाह के गले लगी। सिकंदर, मैं आपके साथ हूँ। हम वालिदैन नहीं बन सकते, ठीक है। ज़ेबा शाह ने सिकंदर शाह के सीने पर सर रखते हुए सरगोशी में कहा। सिकंदर शाह की आंखों से निकलते आंसू ज़ेबा शाह के चेहरे पर गिरे थे। वो तीनों डॉक्टर के ऑफिस से बाहर आए। ज़किया बेगम कितनी ही तसल्ली सिकंदर शाह को दे चुकी थी, लेकिन वो थे जो अपने मुंह पर कफल लगाए हुए चुप थे। एक लफ्ज़ भी उसके मुंह से नहीं निकला था, जबकि ज़ेबा शाह मुसलसल उनको तसल्ली दे रही थी। सिकंदर, ज़ेबा शाह ने सिकंदर शाह को कॉरिडोर में रखी बेंच पर बिठाते हुए उसे तकरीबन झंझोड़ा था। सिकंदर शाह ने अपनी खाली नज़र से ज़ेबा शाह को देखा था। ज़ेबा, तुम मुझसे तत्तला। सिकंदर शाह नम लहजे में बोले, शट अप सिकंदर, अगर दोबारा आपने ऐसी बात की तो वरना मैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़ेबा शाह सिकंदर शाह की बात पर गुस्से से बोली। सुना नहीं आपने? मैं बाप नहीं बन सकता। सिकंदर शाह ने बेबस लहजे में कहा, सब सुना है मैंने और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमारी किस्मत में औलाद नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? किस्मत से लड़ नहीं सकते, जो किस्मत में होता है वही मिलता है सिकंदर। ज़ेबा शाह ने सिकंदर शाह के हाथों को थाम कर कहा, जबकि ज़किया बेगम ने मोहब्बत से अपनी बहू को देखा था, जो डटकर उसके साथ खड़ी थी। उन्हें अपने बेटे पर रश्क आया था, जो उसे इतना चाहने वाली हमसफ़र मिली थी, जो उसकी कमज़ोरी पर उसे छोड़ने की बजाय उसके साथ थी, उसे तसल्ली दे रही थी।
सिकंदर शाह ने ज़ेबा शाह की बात पर उसकी तरफ देखा। सारी ज़िंदगी का सवाल है ज़ेबा, अभी आपको मुझसे मोहब्बत है, अगर कल को आपके अंदर ममता की मोहब्बत जाग गई तो सिकंदर शाह ने संजीदा लहजे में कहा, तो क्या हम सिकंदर किसी यतीम खाने से बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे? ज़ेबा शाह ने सिकंदर शाह की बात का जवाब दिया। सिकंदर शाह ने ज़ेबा को नज़र उठाकर देखा। ऐसे ना देखे सिकंदर, आप मुझे अजीज़ हैं, अगर मुझ में कमी होती तो क्या आप दूसरी शादी कर लेते? ज़ेबा शाह ने सवाल किया। नहीं, मैं सारी ज़िंदगी बे औलाद रह सकता हूँ, लेकिन आपको दुख कभी ना देता। सिकंदर शाह ने रसानियत से कहा, तो फिर आप भूल जाए डॉक्टर की बातें, सब कुछ, हम एक साथ हैं और हम ही एक दूसरे का सहारा है। ज़ेबा शाह ने मोहब्बत से कहा, अगर हमें लगा हमें औलाद की ख्वाहिश हो रही है तो हम बच्चा अडॉप्ट कर लें, ठीक है? सिकंदर शाह को देखकर कहा, हाँ ठीक है। सिकंदर शाह ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी आपको एतराज़ तो नहीं होगा ना? ज़ेबा शाह और सिकंदर शाह ने कब से खामोशी से बैठी ज़किया बेगम से पूछा। नहीं, मेरे लिए तो तुम दोनों की खुशी अजीज़ है, तो मुझे क्या एतराज़ होगा? ज़किया बेगम अपने बेटे और बहू को देखकर बोली। सिकंदर शाह और ज़ेबा शाह दोनों ही मुस्कुरा दिए और एक दूसरे को मोहब्बत पाश नज़रों से देखने लगे। वो तीनों हॉस्पिटल की पार्किंग एरिया से गुजरकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे कि ज़किया बेगम को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ज़किया बेगम ने चौंक कर आसपास अपनी नज़रें दौड़ाई। उन्हें कुछ फासले पर एक आदमी दिखाई दिया जिसने खुद को अच्छी तरह सिया चादर से ढाँप रखा था। आवाज़ तो ज़ेबा शाह और सिकंदर शाह को भी आई थी। ज़किया बेगम ने किसी एहसास के तहत उस शख्स की जानिब अपने कदम बढ़ाए। आसमान पर हल्का हल्का सा अंधेरा फैल रहा था। वो अंधेरा किसी की ज़िंदगी में रोशनी तो किसी की ज़िंदगी में अंधेरा करने वाला था। रुको, ज़किया बेगम उस सियाह चादर में लिपटे शख्स के ऐन सामने खड़ी होती हुई बोली, जबकि ज़ेबा शाह और सिकंदर शाह ने भी अपने कदम ज़किया बेगम की जानिब बढ़ाए और नासमझी से ज़किया बेगम को देखकर बोले, अम्मी क्या हुआ, आप उस शख्स को क्यों रोक रही है? सिकंदर शाह ने पूछा। सिकंदर बेटे, उस शख्स के पास से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, पूछो उस शख्स से किसका बच्चा चोरी करके आया है? ज़किया बेगम सिकंदर शाह को बोली, जबकि सियाह चादर में अपना चेहरा छुपाए सिकंदर लाखानी के चेहरे पर झंझलाहट आई। वो तो अपने बाजुओं में मौजूद उस बच्चे से अपनी जान छुड़वाने जा रहा था और अचानक ज़किया बेगम के रोक लेने और उनके मशकूक अंदाज पर झंझलाहट का शिकार हुआ। कौन है आप और बच्चा किसका चोरी किया है आपने? सिकंदर शाह ने सिकंदर लाखानी के चेहरे से चादर को हटाया और उसके बाजुओं में सफ़ेद कपड़े में नौमौलूद बच्चे को देखकर सख्त लहजे में पूछा, जबकि सिकंदर लाखानी अपने जहन में जल्दी से मंसूबा बनाने लगा, ये मेरा बेटा है। सिकंदर लाखानी ने सिकंदर शाह की तरफ देखकर जवाब दिया। बच्चा रोकर खुद ही चुप कर चुका था, लेकिन अपनी मौजूदगी वो सब पर जाहिर कर गया था। तुम्हारा बच्चा? जिस हुलिये में तुम हमें मिले हो ऐसा हमें नहीं लग रहा। ये तुम्हारा बच्चा है, सच सच बता दो, वरना मैं पुलिस को फ़ोन करके तुम पर अगवा का केस कर दूंगा। सिकंदर शाह अभी भी सिकंदर लाखानी की बात पर यकीन न करते हुए उसे पुलिस की धमकी दे गए थे। सच में ये मेरा बच्चा है, अगर आपको पुलिस को बुलाना है तो बुलवा सकते हैं आप। सिकंदर लाखानी बमुश्किल अपना लहजा नरम करते हुए बोला। उसे किसी भी तरह से यहाँ से जाना था और अपने बाजुओं में कैद उस मुसीबत को कहीं ऐसी जगह रख कर आना था कि आरजू को उसके वजूद का नामो निशान न मिलता। लेकिन फ़िलहाल वो तो उस बच्चे की मौजूदगी से बेखबर थी। वो ये कैसे जान सकती अपने शौहर की इतनी बेरहमी को, जो एक बच्चे को अपना रहा था तो दूसरे बच्चे को कहीं फेंकने। सिकंदर शाह ने ज़किया बेगम की तरफ देखा। उन्हें भी अब लग रहा था कि वो ठीक कह रहा है, क्योंकि सिकंदर लाखानी पुलिस की धमकी से नहीं डरा था। बच्चे, आप इतने छोटे बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हैं और आपकी बीवी किधर है? ज़किया बेगम ने नरम लहजे में सवाल किया। मेरी बीवी ये बच्चा नहीं चाहती, इसलिए मैं इस बच्चे को कहीं रखने जा रहा था। सिकंदर लाखानी ज़किया बेगम की बात पर अपने चेहरे पर दर्द के तासुरात सजाते हुए बोला। सिकंदर लाखानी की बात पर उन तीनों ने शौक से उस बच्चे को देखा जिसे पैदा हुए अभी कुछ ही वक्त गुजरा हो। क्या मतलब तुम? सिकंदर शाह से शौक के मारे कुछ बोला ही नहीं गया। एक वो थे जो बाप नहीं बन सकते थे और एक वो था जो उसके सामने खड़ा जो बाप तो बन गया था लेकिन उस बच्चे की हिफाजत नहीं कर पा रहा था। मतलब ये, मेरी बीवी बच्चा नहीं चाहती और इस बच्चे को दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी और मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर मैं बच्चे को उसके पास छोड़ दिया तो उसे जान से मार डालेगी, इसलिए मैं उसके होश में आने से पहले ही अपने बच्चे की हिफाजत के लिए उसे ऐसी जगह जहाँ उसकी देखभाल अच्छी तरह से हो, मैं अपने बच्चे को वहाँ छोड़ने जा रहा था। सिकंदर लाखानी मसनूई आंसू बहाते हुए खुद को मजलूम और अपनी बीवी को जालिम साबित करने की कोशिश में था।
آپ یہ بچہ ہمیں دے دیں۔ کب سے خاموش کھڑی زیبا شاہ نے سکندر لاکھانی کو کہا۔ اس نے 1 منٹ میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس بچے کو ماں بن کر پالے گی۔ سکندر لاکھانی نے زیبا شاہ کو دیکھا۔ میں کیسے آپ کو دے سکتا ہوں اپنا بچہ؟ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، اور اگر میں دے بھی دوں اپنا بچہ تو آپ کی اولاد اسے اپنا بھائی مانے گی؟ سکندر لاکھانی زیبا شاہ کی بات پر دل میں خوش ہوئے، لیکن مظلومیت کا ڈھونگ تو رچنا تھا نا۔ تبھی زیبا شاہ سے کہا جیسے انہیں اپنے بچے کی فکر بہت زیادہ ہو، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے اور مستقبل میں بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں باپ بننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ سکندر شاہ نے زیبا شاہ کی نظروں کا مرکز جان کر کہا۔ سکندر لاکھانی نے سکندر شاہ کو دیکھا اور اپنے بازوں میں قید نومولود بچے کو اور پھر اس بچے کو زیبا شاہ کی جانب بڑھا دیا۔ شاید اللہ نے اس بچے کو آپ کے لیے ہی بھیجا تھا تاکہ آپ کے لوگ اولاد سے محروم نہ ہو۔ سکندر لاکھانی سنجیدہ لہجے میں بولا۔ شکریہ سکندر شاہ نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ کا جب دل چاہے آپ اپنے بچے سے مل سکتے ہیں، سکندر شاہ نے کہا۔ جی جی ضرور، سکندر لاکھانی نے بمشکل کہا۔ میرا نام سکندر شاہ ہے اور میرا نام سکندر لاکھانی۔ دونوں نے اپنا تعارف کروایا اور دونوں ہی ایک دوسرے کا نام جان کر شوق ہوئے تھے۔ کچھ دیر وہ تینوں سکندر لاکھانی سے بات کر کے اپنی گاڑی کی جانب اپنے قدم بڑھا گئے تھے، جبکہ سکندر لاکھانی نے ان تینوں کے جانے پر اپنا سر جھٹکا۔ آرزو بیبی، تمہارا بیٹا تو گیا۔ سکندر لاکھانی شیطانی قہقہہ لگاتے ہوئے اپنے قدم اندر ہاسپٹل کی جانب بڑھا گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔